Activate. Assalamu alaikum. Good morning, guys. So this is Kashif Iqbal, and today we are going to start a new series, a new lecture series, and this is very beneficial because we are going to discuss the English grammar, the important part of the learning of any student or any candidate. So we are going to start the series of the lectures, and these lectures are concerned with the English grammar. We will discuss all the English grammar with detail, and keep in your mind that this English grammar is beneficial for all the levels of the student, whether the student learns in class 5, whether the student learns in class 10, or whether the student of intermediate, graduations, master, MPhil or PhD, whatever the level of education is there. So this English grammar is the key to make words, to understand the phrases, and to know about the sentences, and to get the comprehension about the paragraph. So this is all about the English language, English grammar instead, that we are going to discuss in this lecture series. So all the English, the lectures for the English grammar that we are going to start today, these lectures are almost 43 in numbers. So you need to watch all the videos carefully. You need to listen all the lectures carefully, and every lecture has its own uniqueness. So this is what we are going to start in this lecture series of English grammar. So हम start करते हैं इंट्रोडक्शन से, इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन से. ये आप स्लाइड पे देख सकते हैं. First and foremost things which I need to say here, that I'm very grateful to Almighty Allah who has blessed me the confidence to prepare these lectures of English grammar for the learners of grammar. So I'm very grateful. This is very beneficial for everyone for this. These grammar lectures are based on my experiences and keen observations. ये सारे जो grammar lectures हैं ये मेरे experience और जो मेरी एक observation है, interest based observation है, उस पर base करते हैं. As I felt a real need for those students, क्योंकि मैं समझता हूँ who want to learn grammar, कि मैं समझता हूँ कि ये उन स्टूडेंट की एक बेसिक नीड है यकीनन, कि जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं. अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर. English grammar is defined as the body of the rules that describe the structure of words, phrases, clauses and sentences in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो इंग्लिश ग्रामर है ना, बेसिकली एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का, रूल्स का सेट है, रूल्स के रूल्स ही रूल्स हैं. और इन रूल्स में कॉमन क्या है, इन रूल्स में अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ड्स के लिए, फ्रेजेस के लिए, क्लॉजेस, सेंटेंसेस के लिए, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की डेली लिविंग जो हमारी जो लाइफ है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं. डेवलपिंग अ सॉलिड फाउंडेशन इन बेसिक इंग्लिश ग्रामर हेल्प्स यू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. अगर आपकी बुनियाद मजबूत है ना इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, तो ये किस चीज़ में आपकी हेल्प आउट करती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, ताकि वो आप करेक्टली कर सकें, ठीक तरीके से कर सकें. एंड मेक्स इट ईजियर टू इम्प्रूव बोथ योर स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन. और इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन होती है वो इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट एक पॉइंट है, ग्रामर एज अ की. ग्रामर इज़ अ की टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज. हम लोग जानते हैं कि ग्रामर जो है एक की है कि जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे दैट इफ़ वी वांट टू लर्न अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, स्पेनिश और एनी अदर लैंग्वेज, then first we need
to focus on the rules of that language. अगर हम अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस लैंग्वेज के जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर से रेलेवेंट वो हमें सीखने पड़ेंगे. When we apply the same formula for English, then we follow this with the same rules which have been made already. तो हमें इंग्लिश के लिए भी इन्हीं रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है जो कि हमने पहले से बनाए हुए हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स. तो हम क्या कह सकते हैं शॉर्टली, ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स है दैट एक्सप्लेन्स हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज, जो कि ये बताती है कि वर्ड्स को लैंग्वेज में यूज़ कैसे किया जाता है. सो नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है स्टेजेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर के स्टेजेस कौन सी हैं? देयर आर 4 स्टेजेस इन इंग्लिश ग्रामर. नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 टेंसेस, नंबर 3 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जिसको हम लोग चेंज ऑफ वॉइस भी कहते हैं, नंबर 4 नरेशंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो जहन में रखें अगर इंग्लिश ग्रामर की स्टेजेस की बात की जाए तो ये सिर्फ 4 स्टेजेस ही हैं और इन जो 4 स्टेजेस के अलावा हमारे पास एज सच कोई ऐसी स्टेज नहीं है. अगर आप इन 4 स्टेजेस को इजीली कॉम्प्रिहेंड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है. सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, स्टेज से मुराद स्टेप है, सिंपल. आप आज स्टेप 1 पे, कल आप स्टेप 2 पे होंगे. सो ये 4 स्टेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा ये जो हमारे आने वाले दिनों में जो लेक्चर्स होंगे इन 4 स्टेजेस के अलावा मैंने कुछ एडिशनल या सपोर्टिव टॉपिक्स भी दिए हुए हैं जो कि ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को कवर करते हैं और वो बहुत यूज़फुल हैं ख़ासकर स्कूल लेवल के लिए. ये वाली जो स्टेजेस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं स्कूल लेवल के लिए भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी, और वो भी बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, short detail of parts of speech. As we know that English language is based on various stages and its first stage is parts of speech. अच्छा, हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहली स्टेज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. सो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बैकबोन्स ऑफ सेंटेंसेस. यानी कि स्टेज 2 टेंसेस इंस्टेड. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बैकबोन फॉर स्टेज 2. अगर आपने स्टेज 2 पे पहुंचना है तो इसके लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसकी बैकबोन है. और ये जो स्टेज 2 है जिसको हम लोग टेंसेस का नाम दे रहे हैं ये किसकी बैकबोन है? स्टेज 2 आई मीन टू से टेंसेस आर द बैकबोन्स फॉर स्टेज 3 and stage 4 respectively. Stage 3 क्या है? Change of voice, active and passive voice, and stage 4 क्या है? Narration यानी कि direct indirect. तो stage 3 और 4 के लिए tenses backbone साबित होते हैं और tenses के लिए क्या चीज़ important है? Parts of speech. All these stages are interrelated with each other. इसी वजह से ये जो चारों stages मैंने आपको बताई हैं, चाहे parts of speech है, चाहे tenses है, चाहे change of voice है या direct indirect है, ये चारों stages आपस में इंटर रिलेटेड हैं. तो जितने भी ग्रामर लर्नर्स हैं मैं उन सबको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा कि ये जो प्लान मैं आपके सामने करने लगा हूं, ये जो लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर करने लगा हूं आज से, तो आपने इनको ज़रा कीनली एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ अंडरस्टैंड करना है ताकि ये आप इसकी वेरियस स्टेजेस को डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा. बिकॉज दीज लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैव बीन प्रिपेयर्ड इन वेरी इजी वे. ये लेक्चर्स जो इंग्लिश ग्रामर को मैं डिलीवर करने लगा हूँ ये बहुत आसान और इजी वे में डिलीवर किए गए हैं और मैंने कोशिश की है कि वन लाइन डेफिनेशन हो जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है एंड एग्जाम्पल्स आर आल्सो देयर. I hope that students will feel much comfort
while listening and watching these lectures of English grammar. स्टूडेंट्स को यकीनन बहुत कंफर्ट होगा और आसानी होगी इस हवाले से इन लेक्चर्स को लिसन करना और अंडरस्टैंड करना. Additionally, all the lectures have been made by keeping in mind the individual differences of understanding level of the student. मज़ीद ये कि जितने भी लेक्चर्स बनाए गए वो स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको माइंड में रख करके बनाए गए हैं कि हर बंदे की एक लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है. Complete elaboration has been given with the help of the types as per the grammar topics to clear the basic concept of the students regarding basic English grammar. और इसमें एक मुकम्मल जो है ना टाइप्स या बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की एक भरपूर कोशिश की गई है. मैनी स्टूडेंट्स हैव मैनी कंप्लेंट्स. कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं दैट दे फील डिफ़िकल्टी कि उनको मुश्किल होती है टू अंडरस्टैंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस के सेंटेंस जो सेंटेंस के अंदर जो टेंस यूज़ किया गया है वो क्या है, and to understand the role of the in, on, at, any या any quality और any expression और etc. तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि सेंटेंस के अंदर मौजूद जो अल्फाज हैं या जो वर्ड्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा फ्रॉम ग्रामेटिकल परस्पेक्टिव. दे आल्सो फील डिफ़िकल्टी टू मेक द सेंटेंस प्रॉपरली. तो बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है उनको कि सेंटेंस को प्रॉपरली बनाया कैसे जाए. देयरफॉर दीज लेक्चर्स विल श्योरली हेल्प दो स्टूडेंट. तो ये जो लेक्चर्स हैं उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे हु आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ basic English grammar. This was our lecture number 1, an introduction to basic English grammar. I hope that you will definitely learn various things in our coming lectures, and you will also get good understanding as well. Thank you very much. Take good care. Good luck.